welcome student. So this is lecture 4 from lesson 1 and it's a last point, and after that you will get a video on exercise of this lesson. So after watching this, try to solve the exercise on your own, and I will send PDF also on WhatsApp group, but you must try to solve exercise with your own. So in this lecture I'll explain the characteristics of a microorganism, and in a previous lecture you have learned about the microbes, microorganism and their size and their classification. Now let's see the characteristics of each and every microorganism. So this is a classification of microorganism, and in the previous lecture you have learned the why and how they are classified into a 5 major classes. You know the 5 major classes. They are the bacteria, protista, fungi, algae and viruses. And you thinking there is no place for the viruses, and I have explained in the previous lecture that the viruses are the link between the non-living and the living ones, living organism. That's why they didn't wrote here, but you have to learn the viruses in a classification of a microorganisms. Hope you understood this much. Now see the characteristic of a bacteria. Okay. So bacteria, I already told you in the Pittacus classification, they are the sole member of the Monera. Okay, these bacteria are the single cell tiny organism which can be either spiral shape, rod shape and a comma shape. See the shape of a bacteria here. These are the spiral shape, this is a rod shape bacteria, this is a um, comma shape bacteria, it is a spiral shape spiral shape bacteria. So these are present everywhere around you. They are the very minute. Bacteria are harmful and useful too, both. Like fungi, we have learned in the previous class, there is fungi is also useful fungi and harmful fungi. Some are edible fungi like mushroom है, देन ईस्ट है जो हम बेकर ईस्ट यूज़ करते हैं, वो खाने में भी इस्तेमाल होता है. कुछ बैक्टीरिया भी है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. सो दे आर द माइन्यूट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. You didn't think they are present in water, soil, air, even in your mouth. You will surprised to know that they are not just 5 or 10, but they are 1,000 or lakh of bacteria on each tooth of your mouth. मतलब एक दांत में हमारे 1,000 बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं. बट जो माउथ के बैक्टीरिया होते हैं दे आर हार्मफुल. इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग यूर टीथ डेली, that your clean becomes yellowish color. This is because of the bacteria. एंड बैक्टीरिया जो विगरसली ग्रो होते हैं, बहुत ही फास्टली ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे मुंह में जमा हो जाते हैं और फिर कभी कभी वो बीमारियां भी बीमार भी कर देते हैं हम लोगों को. नाउ सी द कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया. फर्स्ट, इट्स साइज 1 micrometer to 10 micrometer. This is also explained in the previous class. First point is that unicellular independent parasitic organism. Oh, okay. What is a parasite? Parasitic means they depend on the other's body and harm them. यानी कि दूसरी की बॉडी पर होते हैं बैक्टीरिया, ग्रो होते हैं, वहाँ पर जाके रैपिडली उनका रिप्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ वो दूसरे को हार्म भी करते हैं. ओके. समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म अ कॉलोनीज. विगरसली ग्रोथ होता है उनका, रिप्रोडक्शन जो है उनमें जो सेल डिवीज़न होता है बहुत फास्टली होता है, और जिसकी वजह से जो है ये बैक्टीरिया कॉलोनी का शक्ल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट, bacteria cell is a prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelle are absent. You have seen the classification, they are included in a prokaryote. Okay, so you know the characteristics of a prokaryotic organism. Prokaryotic organism are the organisms which don't have a distinct nucleus and distinct cell organelles.
So that's why the bacteria is a prokaryotic. Okay. Now see the third characteristics. They reproduce by a simple binary fission. Now here the new term is arrived. What is a binary fission? Bi means two. बाई का मतलब होता है टू. फिजन मीन्स द ब्रेक डाउन, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिंपल बाइनरी फिजन के. अगर से बैक्टीरिया, सपोज इट इज़ अ बैक्टीरिया एंड इट बिकम एन अडल्ट, यानी कि वो पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसका जो है फिजन होने के बाद टू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे सेम साइज़ के. सो दैट इज़ अ बाइनरी फिजन, यानी उनमें ब्रेक डाउन होगा बैक्टीरिया का अडल्ट्रेशन के बाद और दे विल बी रिप्रोड्यूस. अब ये 2 के 4 फॉर्म होंगे. इस तरह से जो है इनका रिप्रोडक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस कि बैक्टीरिया जब पूरी तरह से फुल्ली डेवलप हो जाते हैं तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, उनका बाइनरी फिजन होता है. वन बैक्टीरिया divided or break down into two, and then these two bacteria when becomes adult they break down into two. ऐसे करके वो vigorously यानी कि very rapidly fastly जो है 20 मिनट्स में अपने नंबर्स को डबल करते हैं. नाउ सी द बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, दिस इज़ अ डिफरेंट शेप ऑफ अ बैक्टीरिया एंड डिफरेंट बैक्टीरिया. कॉकस बैक्टीरिया है, कोकोबैसिलस है, स्पिरिलम है, बैसिलस है, देन फाइब्रोबैक्टीरिया दैट इज़ अ कॉमन शेप बैक्टीरिया. Here the colorful diagram of this bacteria which is taken from the electronic microscope. Okay, hope you understood the characteristics of a bacteria. Now let's see the characteristic of a protozoa. This is the second microorganism. See the size. First understand what is a protozoa. In botany or in a zoology, pro means the first and zoa means the animal. जोआ का मतलब होता है एनिमल. सो यानी कि वो एनिमल जो फर्स्ट अर्थ पर आए हैं, पहले आए हैं और जो वेल डेवलप्ड भी नहीं थे, दैट इज़ अ प्रोटोजोआ. सो देयर साइज अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर. प्रोटोजोआ आर फाउंड इन अ सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक. यानी प्रोटोजोआ जो है वो कहीं पे भी मतलब ग्रो हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, बट मोस्टली दे आर वाटर एनिमल. ज़्यादातर जो है पानी में ही पाए जाते हैं. एंड दे आर द पैथोजेनिक. पैथोजन मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज अ डिसीज टू द अदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक द फूड फ्रॉम देम. यानी कि जो दूसरों की बॉडी पे डिपेंड रहता है, उससे फूड अपना लेता है और उसको हार्म भी करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एमीबा भी है जो दूसरों की, एंटामीबा है जो दूसरों की बॉडी में ग्रो होता है. अगर से वहाँ रहा ज़्यादा टाइम तो उसको वो बॉडी को हार्म भी कर सकता है, उसको बीमारी भी हो सकती है. दैट इज़ एमीबिएसिस अ डिसीज़ नेम. और मलेरिया भी है, सुना है हमने कि जो मलेरिया का पैथोजन है दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम. वो जो है मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में इंटर होता है और वो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटोजोआ जो है वो पर्सन को मलेरिया डिसीज़ को में तब्दील कर देता है पर्सन को और उसको मलेरिया हो जाता है. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट. दिस आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ यूकैरियोटिक सेल. प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड इनटू, सी द क्लासिफिकेशन. प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटिस्टा भी हमने पढ़ा था. प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होता है एंड दे आर द यूनिसेलुलर बट अ यूकैरियोटिक सेल. यानी कि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, बट जो न्यूक्लियस है उसका वेल डेवलप्ड है. डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर इन्वेलप आर प्रेजेंट इन देम. नाउ सी द थर्ड पॉइंट. देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ अ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोआ. मीन्स दे आर हैविंग अ वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सिंगल सेल होने के बाद भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. देन दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन चाहिए वो उनको बहुत ही डिफरेंट टाइप्स में उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोआ इज ऑल्सो डिफरेंट, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो डिफरेंट. Now next point is these organisms reproduce by simple cell division. Simple cell division means
When the protozoa becomes an adult, it divides into two daughter cells. For example, this is a protozoa and it can be divided by simple cell division, either a mitosis or a meiosis, and produce a two daughter cell. And these two daughter cell, when become an adult, it divide into a different four parts. So the simple cell division is the reproductive method of a protozoa. Example है amoeba, paramecium. You see the diagram here. The paramecium is looks like a sleeper. An organ of locomotion is are there, that is a cilia, जो उनको लोकोमोशन में पानी में होते हैं तो वहाँ पर वाटर करंट को फैलाने में हेल्प करते हैं. देन एमीबा है हियो, एंटोमीबा है जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है. प्लाज्मोडियम एंटोमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस एमीबिएसिस. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोटोजोआ causes a amoebiasis in the human being. Now Plasmodium vivax, it's a malarial pathogen. Plasmodium vivax, ये प्लाज्मोडियम की डायग्राम looks like a single cell having a nucleus around it. When it is inside the body of a human, it causes diseases. Euglena is one of the example, and Euglena is autotrophic and it is an algae. So this is all about the protozoa microorganism. Now let's see, next one is fungi. Next classification is fungi, and you already know about the fungi because we have learned in the previous lecture in the classification of the living organism, and here the Whitaker classify the fungi also, and you know the fungi, what is a fungus and where it is grow. You have seen in the home that on the bread जो जाली वगैरह आ जाती है ब्रेड या रोटी को बहुत दिन रखने में, that is actually a fungi. So size some fungi are very minute, some are can be seen by the naked eyes. यानी कि कुछ फंगस जो है हम उसको देख भी सकते हैं और कुछ फंगस ऐसी होती है जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी देम. फॉर एग्जांपल मशरूम है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ फंगस. यू हैव सीन द मशरूम, सी द डायग्राम हियर, द मशरूम डायग्राम दी है मशरूम की. कुछ फंगस जो है लकड़ी जो होती है वो सब जब उसको पानी लगता है सड़ जाती है तो उस पर ग्रो हो जाती है. कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, दैट दाद जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फंगल इन्फेक्शन. एंड दिस फंगस जो है हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ मैक्रो. यानी कि फंगल जो है मैक्रो भी हो सकती है. हियर आई एम राइटिंग मैक्रो, MACRO, मैक्रो. और कुछ जो होती है माइक्रो होती है. माइक्रो मीन्स जो नेकेड आई से दिखती नहीं है, और मैक्रो मतलब जिसको हम अपने खुली आंखों से भी देख सकते हैं. ओके, नाउ सी द साइज अप्रॉक्सीमेटली 10 fungus is approximately 10 micrometer to 100 micrometer. Okay, these are found on decaying organic matter and dead bodies. You already learn about this. The fungus is a saprophytic, है ना, जो दूसरों की सड़ी हुई चीज़ों पे, जो दूसरी डेड बॉडीज़ पर डिपेंड रहती है, वहाँ से अपना फूड सक करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ सैप्रोफिटिक. उस सैप जो होता है, जो जूस होता है बॉडी का, वो सक कर लेती है. Now second point is these are the eukaryotic organisms. Some are unicellular and other are visible by the naked eye. I just explain this, the micro and macro के जो कुछ हम देख सकते हैं जिसको हम नहीं देख सकते, वो मतलब हो रहा है. Now saprophytic absorb their food from decaying. This is also explained. Now fourth point, they reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. Now here जैसे पता है हमको कि माइक्रो भी है और मैक्रो भी, यानी हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते. तो क्या होता है इसमें, दे कैन बी रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली और आसेक्सुअली. तो मोस्टली जो माइक्रो फंगस होंगी, यानी जिसको हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है देखने के लिए, तो वो फंगस जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी. जैसे हमने प्रोटोजोआ में देखा है, उन पे डिवीज़न होता है सेल का, वैसे इसमें होगा बाय बडिंग. बाय बडिंग का मतलब होता है कि एक बड ग्रो होती है, जैसे प्लांट के ऊपर बड आती है, फिर वो बड से क्या होता है, फ्लावर ग्रो होता है. उसी तरह जो है फंगस की बॉडी पर एक बड ग्रो होती है, और वो बड जो है आफ्टर गेटिंग मच फूड एंड ऑल grows into a next
नेक्स्ट फंगस, यानी कि वो बर्ड जो है थोड़ी ग्रो होने के बाद वो वहाँ से बॉडी से निकल जाती है और फिर एक नया फंगस जो है ग्रो होता है। दैट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डिवीजन बाय द बडिंग, ये बडिंग के थ्रू डिवीजन हो रहा है। एन एग्जाम्पल यू नो द बेकर यीस्ट, हमने बताया था आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी, जब हम मिटाकर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि बेकर यीस्ट जो है एक फंगस के एग्जाम्पल है, जो एक पाउडर आता है जिसको हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग द केक or dhokla and all. Then candida is an example of a fungus, and mushroom, you have know the mushroom very well, that mushroom plant. So this is all about the fungus. Now next characteristics of the microorganism is algae, and algae is also explained in the previous lecture, but now see some micro algae are also there जिसको हम naked eye से नहीं देख सकते, कुछ algae को हम देख सकते हैं. Here are the diagrams of the algae. See, you have seen the green water, the stagnant water become green, जब रुका हुआ पानी बहुत टाइम तक के रहता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है. या फिर घर की दीवारों पे ऐसी ग्रीन अलगी ग्रो होती है, पत्थरों पर, रॉक्स पर. सो जिसको हम देख सकते हैं, तो ये माइक्रो अलगी हो गई है जिसको हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं. बट सम आर नॉट अ माइक्रो, सम आर माइक्रो अलगी, यानी कि क्लोरेला और यूग्लिना. दीज आर द अलगी एग्जाम्पल ऑफ अ अलगी क्लोरेला, जिसको without microscope we can't see. Now see the characters. Size approximately 10 micrometer to 100 micrometer. They are aquatic, eukaryotic, unicellular, autotrophic organism. Why algae is green? Because algae having a green pigment on their cell structure, that's why it is known as a autotrophic. Autotrophic मतलब which कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद ही तैयार करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अलगी. एंड यू नो द प्लांट्स, अलगी कम्स इन द प्लांट्स, द माइक्रो प्लांट्स और द मैक्रो प्लांट्स. अलगी जो है क्लासिफिकेशन, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं और वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज दे हैविंग अ क्लोरोप्लास्ट ऑन इट. Okay, now next point is photosynthesis is carried out with the help of a chloroplast present in a cell. Why we called it is a green? Why we said autotrophic? Because it perform a photosynthesis. आपको photosynthesis already पता है, you have learned in the previous class also. Okay, example है chlorella, chlamydomonas. Very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with a naked eye. बहुत सारी अलगी जो है हमको अपनी खुली आंखों से देखने को मिलती है. यू हैव सीन द डायग्राम हियर. हरा पानी जो दिखता है, देन रॉक्स पर जो ग्रीन कलर की अलगी आती है, मटकों पर जो अलगी आती है, दैट वाटर टैंक जो होता है, या जो दीवारें रहती है जहाँ पर पानी बहुत जमता है, वहाँ पे भी ग्रीन कलर का अलगी आ जाता है. तो बहुत मोस्टली हम जो है अलगी मल्टी सेलुलर है तो हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं. बट जो यूनिसेलुलर अलगी है जैसे कि क्लोरेला है, क्लाइमेडोमोनास है, दिस कांट बी सीन बाय द नेकेड आइज. Okay, this is all about the algae. Okay, hope you understood this much. Now last one is the viruses, and I already explained in the lecture. Viruses are the age between the non-living and the living. मतलब viruses जो है उनको living और non-living के बीच में का organism बोला गया है, because viruses are active only when they are on a living organism. यानी कि वायरसेस उसी वक्त एक्टिव रहते हैं जब वो किसी लिविंग बॉडी पर होते हैं. वो तभी अपना वर्क कर सकते हैं, तभी फंक्शन कर सकते हैं. अदरवाइज इफ दे आर नॉट ऑन अ लिविंग बॉडी दे कांट बी लिविंग. ओके, व्हेन इट इज़ ऑन लिविंग दे आर द एक्टिव वन. नाउ इन today's situation you are seeing the coronavirus. You hear so many things about the corona. It is also a virus and it is active only when it is on our body. कोरोना वायरस भी उसी वक्त हमको होगा जब हमारी बॉडी में होगा. अगर से वो कहीं नॉन लिविंग पर है तो वो 3 और 4 डेज़ के बाद में डेड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर से वो बिफोर दैट डेज हमारी बॉडी पर आता है तो वो हमको अफेक्ट कर सकता है. और वायरसेस जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही रैपिडली ग्रो होते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी फास्टली ग्रो होते हैं. और वो ज़्यादा ग्रोथ अगर से उनकी हमारी बॉडी में हो जाती है तो वो हमको ईजिली अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी बॉडी को ईजिली हार्म कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरसेस. Their size approximately 10 nanometer to 10
100 nanometer. Nanometer is a very very small size. So अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में जो वायरसेस है दे आर वेरी वेरी माइन्यूट वन, यानी कि वायरसेस को हम विदाउट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देख ही नहीं सकते हैं. यानी माइक्रो वायरसेस को देखने के लिए, उनका स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको वी नीड अ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विच इज़ ऑन द बिगेस्ट लेबोरेटरी, जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में रिसर्च लैब में होता है. सो सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर एज अ लिविंग, आई जस्ट एक्सप्लेन, बिकॉज दे आर द एज बिटवीन द living or non-living. They are active only when they are on a living bodies. So see the characteristics, and they are studied under a microbiology because viruses are the very very minute organism. That's why they are studied in a microbiology. Microbiology is a branch of biology that deal with the study of microorganism. यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. सो वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट. एक्सट्रीमली माइन्यूट मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में भी. सी द नैनोमीटर, आई एक्सप्लेन यू द नैनोमीटर इज़ अ वेरी वेरी माइन्यूट मेजरमेंट ऑफ अ साइज. सबसे छोटा नैनोमीटर में लेते हैं. नाउ सी कैरेक्टर्स that means they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with an electron microscope. I just explained this. So second point is they are found in the form of independent particles. Virus is a long molecule of a DNA, that is deoxyribonucleic acid और RNA ribonucleic acid. यानी वायरस जो है इट इज़ जस्ट अ मॉलिक्यूल और अ पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ DNA. सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर रहता है वायरसेस का जिसमें सिर्फ DNA होता है. ओके, सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर है. नो हैंड, नो लेग, नथिंग, नो मूवमेंट ऑर्गन, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, नथिंग इज देयर. ओनली इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज हैविंग अ DNA और आइदर RNA. या तो RNA उस पर प्रेजेंट रहेगा या तो DNA रहेगा. और यू नो द फंक्शन ऑफ DNA और RNA, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है बॉडी से. कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड, और ये जो DNA है वो प्रोटीन कोड से जो है कवर्ड होता है. ओके, और ये जो DNA है रेप्लिकेट होता है, यानी कि अपने डबल तैयार करता है. जैसे हमने पढ़ा है प्रीवियस ऑर्गेनिज्म में कि दे कैन बी रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, दे कैन बी रिप्रोड्यूस बाय सिंपल डिवीजन. वैसे ही वायरस से जो होता है वो रेप्लिकेट होता है, यानी कि अपनी कॉपी तैयार करता है एज इट इज़. ओके, viruses survive only in living plant or living cell only, produce their own protein with the help of a host cell. host cell मतलब यानी कि जो होस्ट रहता है, जैसे कि हम मेहमान होते हैं किसी के घर में और कोई होस्ट होता है यानी हमको जो रिसीव करता है, तो वैसे वायरसेस को अगर हमने रिसीव कर लिया यानी हमारी बॉडी पे वायरसेस है तो वी आर द होस्ट वन, वी आर द होस्ट सेल. ओके, सो एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रिप्लिका मतलब प्रोड्यूसिंग देयर ओन कॉपी, यानी कि जीरोक्स कॉपी हम जिसको बोलते हैं. अगर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर होता है वायरसेस तो वो अपने रेप्लिका को तैयार करता है अपने जैसे. डबल टिबल और मल्टी वायरसेस कैन बी प्रोड्यूस व्हेन इट इज़ ऑन अ लिविंग बॉडी और होस्ट बॉडी. they destroy the host cell and become free. These viruses again infect new cell. Viruses cause many diseases to plant and animal, और मोस्टली वायरसेस इज़ अ डिसीज़ कॉजिंग एजेंट. सबसे ज़्यादा वायरसेस ही जो होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं. वायरसेस यूज़फुल है ही नहीं, जैसे कि बैक्टीरिया यूज़फुल है, फंगस यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है, बट वायरसेस आर नॉट यूज़फुल. नो बैक्टीरिया, नो वायरसेस एनी हेल्प द होस्ट सेल. बिल्कुल भी होस्ट सेल में कोई हेल्पफुल नहीं रहता है, वो बस हार्म ही करता है बॉडी को. जैसे टुडे सिचुएशन में कोरोना वायरस है, अगर से वो मल्टीप्लाई हो गए इन द बॉडी तो फिर पर्सन जो है बहुत ही सीवियर सिचुएशन में जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वायरसेस. सो सी द डायग्राम. इट इज़ अ टोमेटो विल्ट वायरस, यानी कि जो टोमेटो के प्लांट को अफेक्ट करता है उसको उन्होंने नाम दिया विल्ट वायरस. एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरसेस जिसमें DNA दिख रहा है आपको एंड द बॉडी सेल दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसको केमिकल रूट्स भी बोल सकते हैं और फाइबर्स या वैसे जिसको उसकी हम लेग की तरह लेते हैं. तो दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरसेस. नाउ सी द
Examples of a viruses are so many types. For example, you have here the पोलियो वायरस, HIV वायरस, दीज आर द ह्यूमन वायरस. जैसे ह्यूमंस के वायरस होते हैं वैसे एनिमल्स के वायरस से अलग अलग वायरसेस रहते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस जो है मोस्टली ह्यूमन और एनिमल को अफेक्ट करेगा, दूसरों को नहीं. बट कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही अफेक्ट करेगा. सो सी द एग्जांपल हियर, ह्यूमन वायरसेस आर पोलियो वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड HIV वायरस, एड वायरस जिसको हम बोलते हैं. सर्दी जिससे होती है वो वायरस एक होता है. पोलियो का जो होता है पोलियो जिससे वो एक वायरस है. देन कैटल वायरस इज़ देयर जिसको हम पिकॉर्ना वायरस बोलते हैं. देन प्लांट वायरस में मोस्टली टोमेटो वायरस है जिसको हम विल्ट वायरस बोलते हैं. देन टोबैको मोजाइक वायरस, ये भी एक प्लांट वायरस है जो टोबैको के प्लांट को अफेक्ट करता है, तंबाकू जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं. देन बैक्टीरिया का वायरस जो उसको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है. वायरस ओनली अटैक द बैक्टीरिया, दैट इज़ अ बैक्टीरियोफेज. So this is all about the characteristics of a microorganism. Hope you understood this much. If you have any difficulty, you can consult with your teacher, okay, or try to solve the exercise before you will receive that exercise video, but try to solve because it is very easy and I will send the PDF too. So question 1 2 3 are very easy to, you can solve it. So make a notebook, personal notebook of general science, and try to write on them, and I will send a PDF fine soon. So this is the first lesson completed here now, and just prepare yourself for the test. We will going to take your test soon through online only. So good luck. Thank you. Allah Hafiz.